اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون لا یفتر عنہم وهم فیہا مبلسون وما ظلمناہم ولکن کانوا هم الظالمین ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون۔ محترم حاضرین، الحمدللہ ہر اتوار کی طرح آج بھی ہم درس قرآن سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ساری زندگی قرآن مجید کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کی محبت اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بہت ساری باتیں بتایا ہے۔ گزشتہ قوموں کے واقعات، یعنی پرانے زمانے میں کون کون تھے، ان کے کیا اعمال تھے اور ان کے کیا اخلاق تھے، اچھے لوگوں کا کیا انجام ہوا، برے لوگوں کا کیا انجام ہوا، وہ واقعات بھی اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بتایا ہے۔ اور دوسری بات، چند احکام ہے کہ انسان زندگی کیسا گزارنا چاہیے، انسان کی زندگی کیسے گزرے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، یہ باتیں بھی اللہ تعالیٰ بتایا ہے۔ اور تیسری بات جو ہے، بہت سارے غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ بتایا ہے۔ غیب کا مطلب جو چیز انسان کو نظر نہیں آتی ہے اور انسان اپنی کوشش سے معلوم ہی نہیں کر سکتا، اپنے علم سے، اپنی قابلیت کیپیسٹی سے اور اپنی عقل اور ہوش سے معلوم ہی نہیں کر سکتا۔ انسان کی معلومات جو ہیں وہ محدود ہیں، مطلب انسان کے نالج فکس ہے، تھوڑا ہے، بہت زیادہ نہیں ہے۔ اب انسان جنت کے بارے میں یہ دنیا میں بیٹھ کر معلوم نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ معلوم نہیں کراتا۔ انسان دوزخ کے بارے میں معلوم نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ معلوم نہیں کراتا۔ خبر کے اندر کیا ہونے والا ہے وہ انسان کو معلوم نہیں ہے جب تک اللہ معلوم نہ کرائے۔ حشر کے میدان میں کیا ہونے والا ہے وہ انسان کو معلوم نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ معلوم نہ کرائے۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے بھی معلوم کراتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی ہم کو بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں، تو اسے کہتے ہیں غیب کی باتیں، غیب کا علم، غیب کی باتیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ غیب کی باتیں اور کیا ہونے والا ہے، جنت میں کیا ہونے والا ہے، دوزخ میں کیا ہونے والا ہے، وہ باتیں یہاں بتایا ہے۔ تو دوزخ کے بارے میں ایک چھوٹی چھوٹی 4 آیتیں اللہ تعالیٰ یہاں بتایا ہے، تو وہ آیتیں میں آپ کے سامنے ابھی پڑھ کر سنایا ہوں، اس کا ترجمہ سناتا ہوں۔ بہت پیارا ترجمہ ہے اس کا، اور سمجھیں گے تو ہمارے اندر بھی تبدیلی آ سکتی ہے، بدلاؤ آ سکتا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر بھی ہم اچھے اعمال کو اختیار کریں، نیک اعمال کو اختیار کریں، اور اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہم کو برے اعمال سے بچا، برے کاموں سے ہماری حفاظت فرما۔ یہ دعا بھی کرتے رہ سکتے ہیں، کریں گے، اور صحیح راستے میں چلنے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو ان آیتوں کا ترجمہ سناتا ہوں، سنیے کتنا بہترین ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، بے شک گنہگار لوگ دوزخ کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ گنہگار لوگ جو دنیا کے اندر اپنی مرضی سے چلتے ہیں، گناہوں میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ اب گناہوں کے بارے میں تو ہم کو معلوم ہے، سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اکبر الکبائر الشرک، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی گناہوں میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے۔ اس کے بعد چوری کرنا بھی گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، شراب پینا گناہ ہے، سود کھانا گناہ ہے جسے ربا کہتے ہیں، رشوت لینا گناہ ہے، شراب پینا گناہ ہے، زنا کرنا گناہ ہے،
गीबत करना गुनाह है, धोखा करना, ये सारी चीजें गुनाहों में आती हैं। नमाज छोड़ना भी गुनाह है। हमें क्या समझते हैं, शायद ये बुरे काम ही, ये नमाज छोड़ना क्या भी बुरा काम क्या भी नहीं समझते, गुनाह नहीं क्या कि समझते। हालांकि बहुत बड़ा गुनाह है, नमाज छोड़ना भी बहुत बड़ा गुनाह, रोजा छोड़ना भी गुनाह है। ज़कात देने की ताकत के रहने के बावजूद ज़कात नहीं देता है तो उन्हें भी गुनहगार है। बुरे कामा करता नहीं है लेकिन करना सो कामा भी करता ना है। हज करने की अल्लाह ताकत दिया है, पैसे दिया है, दौलत दिया है, सेहत भी दिया है, लेकिन हज को जाता नहीं है, तो इन्हें भी बहुत बड़ा गुनहगार साबित होगा। तो इसलिए अल्लाह ताला क्या फरमाता है, इन्नल मुजरिमीन फी अज़ाब जहन्नम खालिदून, बेशक गुनहगार लोग दोज़ख के अज़ाब में हमेशा रहेंगे। तो फिर क्या होगा वहां हमेशा रहेंगे, तो ला युफ़त्तरु अन्हुम वला वहुम फीहा मुब्लिसून, ये अज़ाब कभी भी उनसे हल्का ना किया जाएगा और वो उसी में मायूस पड़े रहेंगे। मामूल से दुनिया में इंसान को कभी तकलीफ आती है तो सोचता है, तकलीफ से परेशानी होती है, मुसीबत होती है, परेशानी उठाता है, फिर सोचता है चलो चंद दिन के बाद मेरी तकलीफ दूर हो जाएगी, मुसीबत कम हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, फिर मुझे अच्छे दिन आएंगे, ये सोचता है। हमेशा दुनिया में इंसान कोई सी भी मुसीबत में मुश्किल में रहने वाला, क्यों, कोई सी भी मुश्किल हमेशा रहने वाली नहीं, कोई सी मुसीबत हमेशा रहने वाली नहीं है, ये सोचता है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है नहीं, वो उसमें मायूस पड़े रहेंगे, यानी उम्मीद उनकी खत्म हो जाएगी कि दोज़ख से हमें कभी भी बच भी सकते हैं, या अज़ाब हमसे दूर भी हो सकता है या कम हो सकता है, ये उम्मीद भी उनकी बाकी नहीं रहेगी। क्यों, इसलिए अज़ाब कम नहीं किया जाएगा, हल्का नहीं किया जाएगा। जो जितना अज़ाब उनके अमल के हिसाब से उनको मिलना है वो बराबर मिलता रहेगा, अज़ाब हल्का नहीं किया जाएगा, कम नहीं किया जाएगा। अब ये ऐसी बातें हैं इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मतलब बोलते ना ठंड के काटे आगे पाला खड़े गए, क्या भाई खिस्सा कम होने वाला नहीं होता। ऐसी तकलीफ की जिंदगी वहां लाखों करोड़ों साल जिंदगी वहां गुजरने वाली है, हमेशा हमेशा की जिंदगी। अल्लाह ताला फरमाता है खालिदीन, हमेशा रहेंगे। गुज़िश्ता जुमा ये इतवार को मैं रूह के बारे में बताकर वहां एक बात बताया था कि रूह कभी खत्म होने वाली नहीं है। एक मरतबा अल्लाह ताला बना दिया है रूह को, आलम अरवाह में थी, फिर उसके बाद माँ के पेट में आई, उसके बाद ये दुनिया में है, उसके बाद वो रूह को ले जाकर उसके स्टॉक पॉइंट में रख दिया जाएगा, फिर क़यामत के दिन जिस्म और रूह दोनों बड़ा जोड़ दिए जाएंगे, हिसाब किताब होगा, उसके बाद जन्नत या दोज़ख जो उसके अमल के हिसाब से जाने का जाएगा, हमेशा जिंदा रहेगा, रूह खत्म होने वाली नहीं। एक मरतबा अल्लाह ताला रूह को पैदा कर दिया है, वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। ये जिस्म खत्म होता है फिर तैयार हो जाता है, लेकिन रूह हमेशा बाकी रहने वाली चीज है। और रूह के साथ रहेगा आदमी, कहाँ रहेगा, जन्नत में हो या जहन्नम में हो। तो अल्लाह ताला फरमाता है वो हमेशा हमेशा रहेंगे और उसमें अजाब हल्का भी कम भी नहीं होगा, और ये उम्मीद भी नहीं रहेगी अब अच्छा होने का नहीं, अब ये अजाब कम होने का नहीं, अब ये मुसीबत टलने वाली नहीं, हमेशा हमेशा रहना है। आदमी जितनी भी तकलीफ उठाए, तकलीफ उठाने के बाद भी पुकारता है मदद के लिए, कौन तो भी मेरी मदद करो, कौन तो भी है मुझे तकलीफ से निकालो, परेशानी से निकालो। उम्मीद खत्म होगी तो भी परेशानी इतनी रहती है कि उन्हें पुकारता है। क्या पुकारता है वो भी अल्लाह ताला बताए, क्या बताया देखिए, वमा ज़लमनाहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। ये जो इतनी बड़ी सजा इनको मिल रही है, इतनी जो तकलीफ हो रही है, क्या अल्लाह की तरफ से आई है ये तकलीफ, ये मुसीबत है? नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है मैं इनके ऊपर जुल्म करने वाला नहीं हूं, मैं इनके ऊपर जुल्म करने वाला नहीं हूं। फिर कौन जुल्म करते हैं? वलाकिन कानू अनफुसहुम वलाकिन कानू हुमुज़ ज़ालिमीन। और हमने इन पर जुल्म नहीं किया बल्कि ये खुद ही जालिम थे, खुद इन्होंने अपने ऊपर जुल्म कर लेकर आए हैं। अब जुल्म के माने भी हमें कई बार आपके सामने पेश करे हैं, समझाए हैं। तो असल में अरबी में जुल्म का माना क्या, अरबी में बोलते हैं वज़ू शई फी गैरि महल्लिही, वो अरबी में है। उसका मतलब किस चीज को कहाँ रखना है उसकी जगह में रखो तो वो इंसाफ है। अगर चीज को उसकी जगह से हटाकर दूसरी जगह में रखेंगे, नामुनासिब जगह में, तो वो उसके साथ जुल्म है, उसके साथ
जुल्म है। मिसाल के तौर पर टोपी सिर पे लगाने की है, अगर कौन तो मोंडे पे लगाने फिरता है तो बोलेंगे भाई ये टोपी के साथ जुल्म है। क्यों? टोपी की जगह ये है। चप्पल पैर में पहनने की चीज है, अगर कोई आदमी हाथा में पहन के चलता है तो बोलेंगे भाई ये चप्पल के साथ जुल्म है, ये हाथ के साथ जुल्म है, ये हाथ में पहनने की नहीं। तो इसमें पहनने की चीज नहीं, तो इसमें पहन के चलता है तो हाथ के साथ जुल्म है। तो जुल्म को जुल्म इसीलिए कहा गया है कि आदमी जो बात नहीं बोलना है उसे, जो काम नहीं करना है वो काम करता है उसके साथ में, तो ये जुल्म है। नाहक जो किसी भी आदमी के साथ बात करता है, बोलता है, गाली देता है, उसका माल खींच लेता है, मारता है, सताता है, इसे जुल्म इसीलिए कहते हैं कि ये करने का काम नहीं है, नहीं करने का काम उसके साथ कर रहा है, उसके ऐसे जुल्म करते। तो अल्लाह ताला एक बात बताया, क्या बताया? इनको जो सजा मिलती है दोज़ख में, अंगार में जलते ही, तो क्या मैं इनको सताता हूं क्या, जुल्म करता हूं क्या? नहीं, मैं इनके ऊपर जुल्म नहीं करना, नहीं सो काम नहीं, इनको बराबर करने का काम है, बराबर बदला। क्यों? इन्हों खुद जुल्म करते थे अपने ऊपर। दूसरों के ऊपर जुल्म करना तो एक बात, खुद अपने ऊपर जुल्म कर लेते, खुद अपने ऊपर जुल्म कर लेते हैं। तो क्या इन्हों क्या काम करना नहीं कि वो काम करके आए, यानी अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक नहीं ठहराना, शरीक करना नहीं, शरीक करके आए तो अपने ऊपर जुल्म कर ले हैं, खुद अपने ऊपर जुल्म कर लिए। हमें मामूल से दुनिया में बोलते ना, उसके हाथा से बिगाड़ लिया भाई, पीने को शराब कर बोले तो सुना नहीं, बरसा पिया, लीवर खराब हो जाता है, मर जाते हैं, हाथा कांपते हैं, मर जाते रहे नक्कोरे कर बोले तो सुना नहीं, पिया 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 मर गया, उसके हाथा से उन्हें खराब कर लिया, बर्बाद कर लिया। देखो उसकी जिंदगी उन्हें। तो ऐसा अल्लाह ताला क्या फरमाता है, वलाकिन कानू हुमुज़ ज़ालिमीन, मैं उन पर जुल्म करने वाला नहीं हूँ, इन्होंने खुद उनके ऊपर जुल्म कर लिए, नहीं करना से काम पूरे करे हैं, उसका नतीजा आप पाते हैं, उसकी सजा आप पाते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? अल्लाह ताला फरमाता है वो नादो या मालिकू, और पुकार पुकार कर कहेंगे क्या है मालिक। या मालिक अल्लाह का नाम नहीं है ये आयत में, मामूल से अल्लाह का नाम तो मालिक है, मालिक यौमिद्दीन हमें पढ़ते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह का एक नाम मालिक है। लेकिन ये मालिक जो है वो दोज़ख का दारोगा, दोज़ख का फरिश्ता, दोज़ख का मैनेजमेंट करने वाला फरिश्ता है। तो उससे बोलेंगे अजी मालिक भाई, किसे बोलेंगे? दोज़ख का जो दारोगा है बड़ा, उससे कहेंगे लियज़्ज़ी अलैना रब्बुक, ऐ मालिक तेरा रब हमारा काम ही तमाम कर दे। अल्लाह से बोलो भाई हमना खत्म करा लो, अगर बोलो भाई हमना को पूरा खत्म करवा लो, हमारा मामला खत्म करा, बोलो हमें सहा सकते नहीं, ये अजाब, ये तकलीफ, ये मुसीबत, ये परेशानी, ये जलना, ये चीखना पुकारना, ये दर्द, इंसान दर्द को संभाल सकता नहीं, क्या चीज को भी, भूख को संभाल सकता है, नींद लगी तो जरा संभाल ले सकता है, प्यास लगी तो भी थोड़ी देर संभाल ले सकता है, लेकिन दर्द को संभाल सकता नहीं। मामूल से लोग क्या बोलते हैं, कोसी तो एक चीज में दर्द आया तो दांत में दर्द, वाह दांत का दर्द संभालना होता नहीं भाई, जुम 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 कर खींचता रहा तो वो तो कान में दर्द, वाह कान का दर्द संभाल सकते नहीं भाई कितनी। फिर पेट में देखा तो वाह पेट का दर्द संभाल, भाई दर्द को सा भी संभाल सकता नहीं इंसान, दांत का हो, कान का हो, पेट का हो, हंकी में हो, मार लेगा तो जिस्म के अंदर हो, काम भी दर्द करने की चीज को इंसान संभाल सकता नहीं, ये दर्द संभाल सकता नहीं। ये दर्द दो चीजों से खत्म होता है, ये आपको किसी खत्म होता है दवा इस्तेमाल करके वो दर्द वो टाइम को खत्म हो सकता है, नहीं तो हमेशा के लिए दर्द खत्म होना तो इंसान मर जाना, मर गया तो हाँ खत्म। और ये कैंसर की बीमारी वाले आजकल जो तकलीफ महसूस करते हैं, दर्द उनको इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है, उनकी हालत देखी जा सकती नहीं, उनका रोना, उनकी तकलीफ, उनकी मुसीबत, उनकी परेशानी ऐसी रहती है, दर्द तुम्हें क्या भी करो दर्द कम होता नहीं। इंजेक्शन मात्रे देते, वो क्या करते सो सुन करते सो जरा खुद वास्ते मत के सरकार देते, उसके सिवा क्या भी नहीं। उसका इलाज अलग है, वो इलाज करके उसे अच्छा कर सकती, लेकिन जब ज्यादा हो जाता है संभाल सकता नहीं इंसान, तो दर्द तकलीफ संभाल सकता नहीं। तो इंसान क्या सोचता है, ये तकलीफ में मर गया भला भाई, जो तकलीफ, जो मुसीबत, जो दर्द होता है इंसान को, तो उन्हें क्या सोचता है, ये दर्द संभालते सोचकर मैं मर गया तो एक दिन से चले जाता है, बेवासा पीड़ा खत्म हो जाता है हमको, ऐसा सोचता है। तो ये बात उन्हें बोलते हैं
आए जहन्नम के फरिश्ते मालिक, जरा अल्लाह से बोलो, अल्लाह से बोलो, हम लोग को खत्म करा लो कर बोलो, हमें आप सहा सकते नहीं, हमारे हो सकता नहीं, हमें बर्दाश्त कर सकते नहीं, संभाल सकते नहीं। तो फरिश्ता जहन्नम का दारोगा जो फरिश्ते, उन्होंने भी एक फरिश्ते हैं, उन्होंने बोलते हैं काल इन्नकुम माकिसून, वो कहेगा कि तुम्हें तो हमेशा यहीं रहना है, कहाँ तुम्हें खत्म होने वाले हैं, तुम्हारी जिंदगी खत्म होने वाली नहीं है, तुमको मौत आने वाली नहीं है, तुम्हें हमेशा रहना है। तुम्हें अब बोले तो ये तुम्हारी बात क्या चलती, क्या हालत होगी उस वक्त। इसीलिए हदीस में आता है कि जब जन्नत और जहन्नम का फैसला हो जाता है तो मौत को एक बकरे की शक्ल में फरिश्ते लाएंगे, अल्लाह का हुक्म होगा, मौत को बकरे की शक्ल में लाएंगे और जन्नत वालों को दोज़ख वालों को दोनों को पुकारेंगे, ऐ जन्नत वाले लोगों देखो, ऐ दोज़ख वालों देखो। सब जने देखेंगे अपनी अपनी जगह से, तो वो बकरे को ज़बह कर डालेंगे, यानी मौत को खत्म। अब मौत किसी आने वाली नहीं, मौत रही तो आती है, मौत ही नहीं है। ये जमाने में आसान समझ सकती है, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, माइनस को माइनस कर डालो खत्म, हमेशा प्लस हो जाता है। तो वैसा मौत आती है, इंसान को खत्म करती है, लेकिन मौत ही नहीं है तो उन्हें क्या हो जाता है, हमेशा जिंदा रह जाता है। तो वही बात यहाँ फरमाया, खाल इन्नकुम माकिसून, वो फरिश्ता कहेगा कि नहीं, तुमको अब मौत आने वाली नहीं है, तुम्हारा काम तमाम होने वाला नहीं है, तुम्हें हमेशा रहना है। उसके बाद लक़द जिअनाकुम बिल हक़्क़ि वलाकिन अक्सरकुम लिल हक़्क़ि कारिहून, तो उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है, हम तो तुम्हारे पास हक ले आए, हम तो तुम्हारे पास हक बात लेकर के आए। सही बात क्या है, सच्ची बात क्या है, हक बात। अल्लाह ताला की सबसे बड़ी हक बात कौन सी है, कुरान मजीद, इससे बड़ा हक कोसा भी नहीं है। सबसे बड़ी हक वाली बात, हक की किताब, सच्ची किताब अल्लाह का कलाम है। और किसके पास से आई है ये चीज, अल्लाह के पास से आई। अल्लाह हमारा सच्चा है और हमारी किताब कुरान मजीद सच्ची किताब है, और हमारे नबी हमको जो ये कुरान दिए हैं, पढ़ाए हैं, पढ़कर सुनाए हैं, समझाए हैं, आप भी सबसे सच्चे, इंसानों में सबसे ज्यादा सच्चे हैं। तो अल्लाह ताला सच्चा हमारा, हमारी किताब सच्ची, हमारे नबी सच्चे। तो अल्लाह ताला फरमाता है लक़द जिअनाकुम बिल हक़, तुम्हारे पास हक आया था, हक लेकर के आए थे हम। किस तरीके से, एक नबी को भेजे थे तुम्हारे पास और एक किताब को भेजे थे, दोनों चीजें सही बात तुम्हारे पास आई थी, लेकिन तुम्हें क्या करे, वलाकिन अक्सरकुम लिल हक़्क़ि कारिहून, हम तो तुम्हारे पास हक ले आए, लेकिन तुम में से अक्सर लोग हक से नफरत करने वाले थे, हक को मानते नहीं थे, हक को समझना चाहते नहीं थे, मानना चाहते नहीं थे। तुम्हारी जो झूठी बात है या झूठा ख्याल तुम्हारा है, तुम्हारी ख्वाहिश है, तुम्हें जिसे सही समझते थे उसी चीज को तुम्हें सही समझते हुए अमल करते चले गए, काम करते चले गए, और हक बात तुमना को पसंद आई, हक बात तुमना को मीठी लगी नहीं, कड़वी लगी तुमना को, और तुम्हें हक बात को कभी पसंद करे नहीं। अब ये हक बात को पसंद करने के बारे में और हक से नफरत करने के बारे में दो बातें मैं आपको सुनाता हूँ, बड़ी अहम बातें। ये एक बात, सबसे पहली बात जो है, हक बात को नापसंद करने का मतलब अल्लाह को नहीं मानना, सबसे बड़ी बात। हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह का फजल है हमारे ऊपर कि अल्लाह ताला हमको ये तौफीक दिया कि हम अल्लाह को मानते हैं। आज दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह नहीं है, खुदा नहीं है, नऊज़ बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, ऐसा कहते हैं। ऐसा कहने वाले भी दुनिया के अंदर हैं कि अल्लाह नहीं है, ये दुनिया खुद ब खुद चलती है, ये दुनिया खुद ब खुद चलती है। एक दूसरे किस्म के लोग कैसे हैं, अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह है, लेकिन अल्लाह के साथ शिरिक करते हैं, अपने झूठे खुदाओं को जिनको खुदा बना कर रख लिए हैं, फर्जी खुदा कहती, फर्जी का तो इन्होंने बना लिए, सो रियल में उन्होंने नहीं, हकीकत में उन्होंने नहीं है, इन्होंने फर्ज कर लिए हैं, इन्होंने सोच लिए इनके दिमाग से ऐसा है ऐसा है। और दूसरी बात, इन्होंने उन लोगों के रास्ते पर चलते हैं जो इनके पहले थे, यानी मैं कोई भी काम करता हूं, भाई क्या वास्ते करते हैं, भाई मैं ये काम इसलिए करता हूं, हमारे बाबा करते थे, हमारे दादा करते थे, हमारे बड़े लोग करते थे, मैं भी करता हूं।
या मेरे उस्ताद करते थे, उनके उस्ताद करते थे, मैं भी करता हूँ, हमारे बुजुर्ग करते थे, मैं भी करता हूँ, या मैं जिनको सही समझता था कि वो करते थे, मैं भी करता हूँ। अब अगर वो बात हक है, सही है, वो बात हो, वो काम हो, वो तरीका हो, सही है, तो फायदा मिलेगा। और अगर नुकसान गलत है, तो वो बात भी गलत है या वो तरीका भी गलत है, वो चीज भी, काम भी गलत है, तो फिर नुकसान में हो जाएंगे हमें। और सही बात को नहीं लेना, यह हक का इनकार करना है। लिल हक कारी हो, अल्लाह ये फरमाया। अल्लाह ताला एक ऐसी बात बता डाला है, उसमें सारे चीजें आ जाती। खाली मुझे मानने के बारे में कर को बोला नहीं, अल्लाह हक कर को एक बात बता देना। हक का तो क्या, सही बात, सच्ची बात। जो सच्ची बात को इनकार करने वाले हैं, वो सच्ची बात किस तरीके से भी हो, सारी बातें इसके अंदर आ जाती। वलाकिन अक्सरकुम लिल हक़ कारिहून, लेकिन दोज़ख में जाने वाले जो गए हैं, दोज़ख वाले, तो उनको अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम में से बहुत सारे लोग हक का इनकार करते थे, हक को पसंद करेंगे, कराहत करती। हाँ, कारिहून का मतलब क्या, नफरत करना, नापसंद करना। कराहत, कराहत का तो हमें मामूल से बोलते नहीं, क्या तो सड़गी सो चीज लगा दिया, कीड़े पड़ गया, साम दिया, बै सो निकाल निकाल निकाल। कनराट आती है एक दिन, देखो हमें कनराट, हमारे बात हम बोलते हैं, क्या भाई क्या की बड़ी कनराट बा, मतलब देखा तो कनराट नहीं हुआ, कराहत। कराहत का मतलब नापसंद करना। कीड़े पड़ गए, साम खाओ बताएं क्या, हम ना को खा सकता नहीं कौन भी। तो इस तरीके से कराहत करने वाले, हक जब उनके सामने आया, उन्होंने कराहत करे, पसंद करे नहीं, नफरत, नहीं नहीं नहीं। ये अल्लाह के बारे में भी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बताते थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को इनकार करे, जब कुरान पेश करे तो कुरान की बात को इनकार करे। वो रिवाज, वो तरीका आज भी दुनिया के अंदर है। एक बदबख्ती, हमारी बदबख्ती का तो बुरी तकदीर कहते हैं, उसे बख्त का तो तकदीर, बदबख्ती की तो बुरी तकदीर। क्या, अल्लाह को नहीं मानने वाले कुरान को मानते नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को नहीं मानते हैं, तो अलग बात है। लेकिन कलिमा पढ़ने वाले, कुरान पढ़ने वाले, अपने आप को आलिम कहने वाले भी बहुत सारे लोग ऐसे ही जो कुरान की बात को लेने के तैयार नहीं, हक बात को लेने के लिए तैयार नहीं, पसंद है उनको, नहीं नहीं। क्या भाई, हमारे बड़े दुनिया क्या करें, वोच करते हमें, हमारे बाप दादा क्या करेंगे, वोच करते, हमारे उस्ताद क्या बोले, वोच करते, हमारे बुजुर्ग क्या करें, वोच करते। हक बात तुम्हारे सामने है, नहीं नहीं, हम ना पसंद नहीं, हमें वो तरीका भी पसंद नहीं, वो काम भी पसंद नहीं, वो बात भी पसंद नहीं हमें। तो ये जुमरे में, जुमरा का तो ये राउंड में, ये ग्रुप में सारे लोग आ जाते। कौन कौन आ जाते हैं, काफिरान भी आ जाते हैं, मुसलमान भी इसमें आ जाते हैं। कैसा, जब तुम्हारे सामने कुरान की बात आएगी, अल्लाह की बात है, तो तुम्हें अल्लाह की बात लेने के लिए तैयार नहीं, तो फिर तुम्हें हक को इनकार करे, ना पसंद करे। अब तुम्हें दुनिया में जो कुछ करना था करे नहीं, जो नहीं करना था वो करे, और मौका जो था वो गमा ले, तो आगे है दुनिया में तुम्हें, अब यहाँ क्या कर सकते हैं तुम्हें करके बोले। तो फिर एक बात बोलते हो, छोड़ते नहीं। वो कहा है, अभी तक जो मैं सुनाया, सूरह ज़ुख़रुफ़ 40/3 सूरा, वो 70/4, 70/5, 70/6, 70/7, 70/8, ये आयता मैं आपको 5 आयतें सुनाया। इसका बाद का वाला हिस्सा, इसके बाद का वाला हिस्सा जो है वो सूरह मोमिनून में है, 2 आयतें हैं, वो 2 आयतें छोटी छोटी आयतें, उनका माना मैं आपको सुनाकर हम बात खत्म करता हूँ। हत्ता इज़ा जाअ अहद, अच्छा, इंसान जो आखिरत में जाने के बाद भी बोलता है, जिंदगी में के आखिरी वक्त में भी बोलता है ये बात। क्या बोलता है, कुरान में अल्लाह ताला ये भी बताया, क्या बताया, आए अल्लाह दुनिया में दोबारा मुझे भेज, दुनिया में दोबारा मुझे भेज, मैं एकदम अच्छा इंसान बन रहा हूँ, हक बात को लेता हूँ, कुरान की बात को लेता हूँ, तेरी बात को लेता हूँ, नबी की बात को लेता हूँ, मैं सारे अच्छे काम करता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, रोजा रहता हूँ, ज़कात देता हूँ, हज करता हूँ, गरीबा की मदद करता हूँ, और सारे बुरे कामों से बच को आता हूँ। चोरागी करता नहीं, झूठ बोलता नहीं, शराब पीता नहीं, जिना करता नहीं, ब्याज खाता नहीं, रिश्वत लेता नहीं,
एक की गिबत करता नहीं, एक का बुरा चाहता नहीं, एक को सताता नहीं, ये बुरे काम पूरे छोड़ को पूरे अच्छे काम कर को आ तू अल्लाह मुझे दोबारा दुनिया में एक बार भेज अल्लाह, मुझे एक बार भेज अल्लाह, मुझे एक बार भेज अल्लाह कर को इंसान वहां जाने के बाद पूछते अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला फरमाता है वलो रुद्दू लआदू लिमा नहाकुम अन। अल्लाह ताला फरमाता है नहीं, तुम ना कि एक बार दुनिया में चांस थी, वो तुम्हारी चांस खत्म हो गई, अब तुम ना दोबारा चांस मिलने वाले नहीं है। अगर हाँ देखो गौर करने की बात, मैं चाहूं तो भेज सकता हूं, अगर इनको दोबारा दुनिया में भेजेंगे तो इन्हों फिर वही काम करेंगे जिन काम से इनको बना के आ गया था, वैसे बिसर जाती, दोजख में डाले सो दोजख की सजा अंगार में जले से बिसर जा को दुनिया में गए तो फिर इन्हें पूरे वज कामा करती हैं, हक बात को मानते नहीं, अल्लाह को मानते नहीं, नबी को मानते नहीं, कुरान को मानते नहीं, जन्नत को मानते नहीं, दोजख को मानते नहीं, क़यामत को मानते नहीं। वहां जाने के बाद इन्हों फिर वही काम करती। वलो रुद्दू लआदू लिमा नुहू अन्हु, अगर इनको दोबारा लौटा भी दिया जाए, ये तो होता नहीं, ये तो होता नहीं, दोबारा ये वो दुनिया से ये दुनिया में आना होता नहीं, नामुमकिन है। अल्लाह के लिए मुमकिन है लेकिन अल्लाह करता नहीं, अल्लाह का एक बार फैसला हो गया, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है अगर मान लो थोड़ी देर के लिए इनको दोबारा दुनिया में भेजेंगे तो इन्हों फिर वही काम करेंगे इनको जिन कामों से इनको मना किया गया था, वो काम पूरे करेंगे, इन्हों सुधरने वाले नहीं है। उसके बाद फरमाया हत्ता इज़ा जा अहदहुमुल मौत क़ाला रब्बि इरजिऊन, चंद लोग ऐसे हैं दुनिया में जब इनको मौत का वक्त आता है, यहां तक कि जब उनमें से किसी को मौत आने लगती है तो कहता है ऐ मेरे परवरदिगार मुझे वापस लौटा दे। मौत का वक्त आया था, दुनिया में भी ऐसा बोलते हैं, आखिरत में भी बोलते हैं, जब मौत का वक्त आता है तो बोलते हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मौत को सरका को हटा को मुझे जरा लंबी उम्र दे अल्लाह, मुझे लंबी उम्र दे अल्लाह, और जीने का मुझे मौका दे अल्लाह, जिंदगी दे अल्लाह। तो अल्लाह वो क्या बोलता है फिर उन्हें लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि अब लअल्ली अअमलु सालिहन, कि अपनी छोड़ी हुई दुनिया में जाकर नेक अमल कर लूं, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। ये तो सिर्फ एक बात है जिसका ये कहने वाला है, सिर्फ मुंह में इसके दिल में आई है बोल दिया है, लेकिन इन्हें करने वाला नहीं है। उनके पसे पुष्ट तो एक हिजाब है उनके दोबारा जी उठने के दिन तक। तो अल्लाह फरमाता है नहीं, अब ये तो दुनिया से आ गया है, फिर यहाँ से एक पर्दा है, ये दुनिया से पर्दा, तो उधर चला गया तो क़यामत तक तो वो पर्दे में रहना, बरज़ख जिसे बोलते हैं, खबर जिसे बोलते हैं, खबर के अज़ाब में। अब यहाँ एक बात बताकर बात खत्म करता हूँ, वो क्या है, जरा भाई पूछते रहते हो हजरत खबर में ले को दफन करे तो खबर में सवाल जवाब होता है, मुर्दे में जान डाल कर फिर से सवाल जवाब होता है, मन रब्बु का मा दीनु का मन नबी का, उन्हें जवाब में दिया तो उसे आराम से खबर में रहता है उन्हें, अगर जवाब नहीं दिया तो उन्हें दोज़ख में ये सजा पाता है। तो ऐसा है नहीं क्या, खबर में दफन करे तो जरा ऐसे आदमियाँ ही जिनको जला डालते हैं, हिंदुआ क्या करते हैं लगड़ा डाल को जला डालते हैं, उनको दफन करे नहीं, अब उनको कैसे सवाल जवाब, ये रहा तो ना जिंदा कर को जला को राख कर डालेंगे, अब कैसे सवाल जवाब होता है। एक बात थी जरा ऐसे आदमियाँ ही पानी में पड़ को मर जाता है, मच्छा खा लेती उसे, मच्छा खा लेती, अब उन्हें कैसा सवाल जवाब उसे, या बामा फुट को मर जाता है, बाम पड़ा इन्हें जाता था फुट को मर गया, या जलगा, कभी कभी कार में जाता था कार फूट गई जलगा, बस जल जाती, देखती ना मैं न्यूज़ में सब, उन्हें ऐसा मर जाता है, उसे कैसा। या नहीं तो जंगल में गया, ये चित्ते शेरा कतर को खा लिए, उनके पेट में चल गया गोश्त, अब कैसा सवाल जवाब, खबर में गया नहीं, खबर में गया तो नहीं का सवाल जवाब, ऐसा एक डाउट आता है। क्यों, ये दुनिया में चलने के काम, हमारे आंखों के सामने चलने के काम है। तो इन सारी बातों का जवाब ये है कि जिंदगी जब खत्म होती है तो फिर वहां से वो अलग दुनिया शुरू हो जाती है। उसे समझाने के लिए जनरल से आदमियां मरने के बाद दफन करती तो वो दफन के हिसाब से समझाएगी। बाकी के जो चीजें हैं, इंसान बाम से फुट को मर जाना, दफन करे नहीं, या जानवर खा लिए,
या जला डाले, ये सब वहां से उसकी दुनिया अलग हो जाती है और वो दुनिया में उसके साथ जो होना है वो होता है, उसके साथ जो होना है वो होता है, वो छुपने वाला नहीं है। वो कैसा होता है, क्या होता है, अल्लाह जानता है। तो उसके बाद अल्लाह ने फरमाया वो मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, उन्हें भी दोबारा जिंदे होने तक उनके दरमियान, उनके पीछे क्या है, एक बरज़ख है, एक आड़ है। आड़ का तो एक पर्दा है, वो पर्दे में क्या होता है हम लोग को नहीं मालूम, उसकी दुनिया वहां से शुरू हो जाए। अच्छा, उसके बाद एक हदीस है इसके अंदर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो हदीस सुनाता हूँ, बड़ी प्यारी हदीस है। एक आदमी था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, एक आदमी था, उन्हें अपने बच्चों को बुलाया, जब उसका आखिरी वक्त था, अपने बच्चों को बुलाया और कहता है कि बेटा देखो, मेरे मरने के बाद मुझे दफन करो न, मुझे दफन करो न, मुझे जला डालो, जला को मेरी राख, आधी राख हवा में उड़ा डालो, इधर उधर इधर उधर हवा लेकर चल जाना, इधर का तो उधर, और आधी राख पानी में मिला डालो। अब पानी इधर उधर नदियां की शक्ल में, इधर उधर नाले की शक्ल में चले जाता है, कहाँ का तो वहां चले जाती है, एक जगह रहती नहीं, राख पूरी भी बिखर जाती है, फैल जाती है। अब हवा भी किधर तो उड़ा के लेकर चल जाती है, ऐसा करो करके बोला। तो बच्चे बाप की ख्वाहिश के बराबर, जब बाप का इंतकाल हो गया तो दफन करे नहीं, ले आको जला डाले, जला को बाप बोले जैसा आधी राख हवा में उड़ा डाले और आधी राख पानी में ले मिला डाले। ये हिंदू आदमी जो करती ना, मर गए तो राख ले आको पानी में मिला लो, काशी को ले आके मिलाती नो, काशी को ले आको तमालू में डाल लेकर जिसमें चंद आदमी मिला खाती, अस्थि कलू कल्पेश नमो ऐसा मिला खाती। शायद वो ये भी रह जा उनका ख्याल, वो उनका पुराना आदमी कौन की बोला रह जा, शायद उस तरीके से चलते रहेंगे, हम आपको मालूम नहीं उनके बारे में, हाँ यकीनी बात तो मालूम नहीं, शायद ऐसा हो सकता है। तो इस तरीके से उन्हें करा, बोला तो उसके बच्चे कर डाले। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से पहले चला सो किस्सा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के जमाने में चला सो किस्सा। तो उसके बाद अल्लाह ताला क्या किया, हवा को हुक्म दिया जमा कर, तो एक सेकंड में पूरी हवा जमा कर डाली, आधी राख पूरी। पानी को हुक्म दिया, पानी पूरा जमा कर डाला, दोनों मिल गए, ये राख वो राख। अल्लाह उठाया, उठ, तो उठकर खड़े हो गया। तो अल्लाह पूछा क्या समझा था, क्या तू ये समझता था कि मैं तुझे जमा कर सकता नहीं, तेरी राख चलेगी तो मैं राख जमा कर सकता नहीं, तुझे दोबारा पैदा कर सकता नहीं। पहले जो खुदा पैदा किया है जो अल्लाह, वो अल्लाह फिर दोबारा पैदा करने से क्या मुश्किल है। कुरान में ये बातें भी आई हैं, अल्लाह ताला कई जगह समझाया है, अगर मुश्किल रहना था तो तुम्हारा पहले बार पैदा करना मुश्किल रहना था। एक मिस्त्री है या एक कारीगर है, ये टेबल पहले बार बनाना जरा सोच को समझ को डिजाइन ये सब उसे बनाने के लिए जरा टाइम लगता है, जरा मुश्किल हो सकता है। एक बार बना दे रहा है, फिर खोल के फिर जोड़ने क्या है, सेकंड में कर रहा था, क्यों, पहले से करा काम। तो ऐसे अल्लाह ताला फरमाता है तुमको पैदा करना अगर मुश्किल रहना है तो पहले बार पैदा करना मुश्किल था, लेकिन पहली बार पैदा करना मुश्किल नहीं है तुम्हारा को, तुमना को पहली बार जो पैदा कर रहा हूं वो मुझे मुश्किल नहीं है, फिर दोबारा पैदा करना क्या मुश्किल है मेरे लिए। कुरान में ये बात है, बल्ला की जगह आई है। तो तुम्हारा पहले पैदा करना भी मुश्किल नहीं, बाद में पैदा करना भी मेरे लिए मुश्किल नहीं है। तो उसे जमा करके पूछा अल्लाह उठा कर, तो उन्हें अल्लाह ताला के पास बोला, अरे अल्लाह मैं ये समझा नहीं, क्या समझा नहीं, तू जमा कर सकता नहीं, तेरे से हो सकता नहीं, हवा में से पानी में से जमा कर सकता नहीं, मुझे जिंदा कर सकता नहीं, करो हमें वो बोला। सो मैं ये सोच को बोला ये ताकत नहीं है तू कर सकता नहीं, कर को नहीं ताकत है तू कर सकता है, लेकिन मैं ये सोचा ऐसा तो भी छोड़ डालता क्या कि जान दे, चलो भाई वो जिस्म रहा तो उसे दम भरो, तो उठाओ पूछो करो, अब जान दे, जला डाली छोड़ डालो जान दे, और उसकी राख हवा में चल गई, पानी में चल गई, जान दे छोड़ा लो भाई, जाके मरन दे, छोड़ो करो। ऐसा तो भी मुझे माफ करवा था क्या कि रहम करते छोड़ा था क्या कि करो, ऐसा बोला था अल्लाह, तेरी खुदरत नहीं करको नहीं करको बोल। तो अल्लाह ताला अच्छा तू इतना डरता था मेरे से, तो जा मैं तुम्हें माफ करता। तो ऐसा सबको होता नहीं, अल्लाह जिसे जिसे चाहता है उसे करता है। तो अल्लाह की खुदरत, अल्लाह की ताकत से कोई चीज बाहर नहीं है, और जो कुछ अल्लाह कुरान में बताया है, जो कुछ अपने नबियों के जरिए से बताया है, ये 100% चलने वाला, 100% का तो 100 को 100 100%
बराबर पक्का हरफ बहरफ क्या चलने वाला है क़यामत के बाद, हिसाब किताब के बाद, वो सारी चीज़ें अल्लाह ताला कुरान में बताया है। तो ये क्वेश्चन भी बता डाला अल्लाह, आंसर भी बता डाला है। ये पढ़ने का ये किसका आंसर, खाली क्वेश्चन बोल डाले तो आंसर मालूम है तो इंसान को तकलीफ होती है, लेकिन क्वेश्चन भी आंसर जो भी, अरे भाई ये सवाल के पूछते, इसका सवाल का जवाब है, सीख लेगा जा। तो इतना आसान दुनिया में कौन करते नहीं, लेकिन अल्लाह ताला हमारे लिए इतना आसान कराया है कि सवाल भी सिखा डाला है, जवाब भी सिखा डाला है, क्या करना कैसा करना पूरा भी। अब जो इंसान ये सवाल जवाब मालूम होने के बाद भी उसकी तैयारी करता नहीं, इससे बड़ा नादान, इससे बड़ा कम अकल, इससे बड़ा बेवकूफ कौन भी नहीं। अगर मैं ना करूं तो मैं भी, कौन भी, कोई भी इंसान है सब कुछ मालूम होने के बाद भी अगर कराया नहीं तो हमारे से बड़ा नादान कौन भी हो सकता है। तो इसलिए आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को सारी ज़िंदगी इसी तरीके से कुरान मजीद पढ़ने, सुनने, समझने, याद रखने और कुरान की मजलिस में बैठने, कुरान के दर्स में बैठने की तौफीक अता फरमाए और इन बातों को समझ कर याद रखने की तौफीक अता फरमाए और इन कुरान के आयतों के ज़रिए से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों बातों के ज़रिए से हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आने की अल्लाह हमको तौफीक अता फरमाए, तब्दीली लाने की तौफीक अता फरमाए, हमारी ज़िंदगियाँ नेक अमाल में गुजारने का अल्लाह हमको तौफीक अता फरमाए, बुरे कामों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। जो जाने अनजाने में हमारे से सगीरा या कबीरा गुनाह हो गए हैं अल्लाह उन गुनाहों को माफ़ फरमाए और अल्लाह ताला हमारे माँ बाप के गुनाहों को माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला हमारे बीवी बच्चों के गुनाहों को माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला हमारे सारे रिश्तेदारों के गुनाहों को माफ़ फरमाए और सारी दुनिया के मुसलमानों के अल्लाह ताला गुनाहों को, कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। हमारी यही दुआ है कि अल्लाह हम तमाम लोगों के ख़ताओं को दरगुजर फरमा, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी लफ्ज़ों को माफ़ फरमा, अल्लाह हम तमाम लोगों को दुनिया के अंदर खुशी की ज़िंदगी, ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमा। अल्लाह जब हमारी मौत आए तो मौत भी हमारी ईमान की हालत में मौत अता फरमा। अल्लाह हम तमाम लोगों को खबर के अज़ाब से हिफाजत फरमा, अल्लाह हम तमाम लोगों को जहन्नम के अज़ाब से हिफाजत फरमा, अल्लाह हम तमाम लोगों को तेरे रहम से, करम से, फजल से जन्नत नसीब फरमा और जन्नत में तेरा दीदार नसीब फरमा। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।